morning to you all. I hope you all are doing well. Hi, very Okay. good morning. Hello. Okay. So others, please can you mute yourselves? Yeah, Manar. Now we can unmute. Perfect. Okay. All right. Am I audible enough? Yes. Okay. So once again, good morning to everybody. A very good morning. Okay, whatever, if you have any problem, just give me thumbs up if you are not if I'm not audible in case. Okay. So are you all ready for today's session? First, I'd like to introduce myself. My name is Manali Salecha, and I am one of the Devang Sir students from, yeah. Okay. So let us start with prayer and Omkar. Sit in any comfortable Adharasan. You can take Ardha Padmasan, you can take Sukhasan. Yeah, you can fix your hands on your knees and keep your spine erect, chin parallel to the ground, and face completely relaxed. Just completely relax yourself. We'll first take deep inhalation and we'll do Omkar chanting. So we have to inhale completely in, and while exhaling, we have to chant Omkar, that is Omkar. So O should be from your stomach and from your chest, more, and from your mouth, the Mokar should be there, the long rhythm. Okay, it should be like Om. Okay, so we'll start. Completely inhale. Inhale again, this time more deeply. One more time, and this time with deep, longer. Inhale in. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Just close your eyes and feel the vibrations of your prayer and Omkar. Just be there for a moment. Slowly and gently open your eyes. Slowly and gently open your eyes. Okay. So we'll first start our session with a warm-up. It's a Sukshma Vyayam. Okay. So I'll request you all to just, first observe me and then you can repeat after me.
All right. So we'll make a fist of our hands and we'll do in a circular motion. We'll rotate it in a circular motion. और फिर आपको इसको opposite side भी rotate करना है. Am I visible? Okay. Yeah. So everybody together, yes. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Now take your hands to your shoulders. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 and 5. अब हाथों को शोल्डर पे रखना है आपके and we'll take it in a circular motion like this. Okay, it should be completely back. आपको elbows आगे की तरफ लाना है और जितना हो सके उतना shoulder blades को पीछे की तरफ लाना है. Okay, inhale and take it up and let your chest pop out a little bit. Yeah. Completely round circles. 1, 2, 3, 4 and 5. Ab opposite side. 1, 2, 3, 4 and 5. Very nice. अब अपने पैरों को अपने सामने की तरफ ओपन करना है. Just open your legs in front of you. Yes. अब दोनों पैरों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है. आपके जो फुट है उनको एकदम बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है. Yes. Completely stretch in front of you. Yeah. Very nice. Now completely towards you. आपके toes आपकी तरफ आने चाहिए इस तरह and pull it inside. Feel the stretch on your legs. आपके पैर के पीछे की साइड में जहाँ पे आपकी मसल्स है आपको काफ पे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा. Yes, completely towards you. Very nice. Now can you just lift your leg 1, 2, alternate legs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax yourself. Just shake your legs a bit. Just shake your legs a bit. Yes, perfect. We'll just stand on our mat. Let's stand on our mat. अब हम एंकल रोटेशन करेंगे. एंकल रोटेशन के लिए पैर को आगे की तरफ लाना है, सामने की तरफ. And you have to rotate it in a circular motion. Yes, इस तरह से. A complete circle. आपको O बनाना है पैर से जैसे आप ड्राइंग कर रहे हो. Yes. From your right towards your left, completely 1, then 2, 3, 4 and 5. Opposite leg. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. दोनों पैरों के बीच में कुछ अंतर बनाइए. दोनों पैरों के बीच में we'll do a hip rotation. Okay, hip rotation के लिए go towards from your right to your completely towards your left. Towards your right and then completely towards your left. आपको right में जाना है फिर आगे से पीछे की तरफ आना है. Beautiful. आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो. Very nice. 1, 2, completely take big circles. Just relax and take completely big circles. 2, 3, 4, and relax in the center. Let's do once in the opposite side. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, relax yourself. अब हम सबसे पहले करेंगे ताड़ासन. ताड़ासन is stretching pose, a complete body stretch. तो वो करते समय हम हमारे टोस पे खड़े रहेंगे और हम ऊपर की तरफ हाथ रखेंगे
कंप्लीटली स्ट्रेच फील करना है फुल बॉडी पे, राइट फ्रॉम योर टोज टू योर हेड। आप पहले एक बार देख लेंगे, फिर आपको करना है। Now you can see me come. Okay. अब आपके जो पैर है वो आपके हाथों के साथ में एक समान उठेंगे। ओके, so just raise your hands and legs together. अब इसमें बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको किसी भी एक पॉइंट पे गेज करना है। Just stretch it upwards, completely stretch. चेहरे पे कोई भी तरह का तनाव नहीं। Yes, beautiful. Just be there as per your capacity. And now slowly and gently come down. Let your movements be very slow and controlled and rhythmic. Okay. Once again, we'll go for the round. Yeah. दोनों पैरों में आपके हिप लेवल जितना अंतर, दोनों हाथों को शरीर के पास में। अब दोनों हाथों को, दोनों पैरों को एक साथ में उठाएंगे ऊपर की तरफ। हाथों को, यस, कंप्लीटली आप। अब जब ऊपर आ चुके हो तो एकदम स्ट्रेच, कंप्लीटली स्ट्रेच अपवर्ड्स। यस, कंप्लीटली स्ट्रेच अपवर्ड्स। Very nice. Now slowly and gently maintain as per your capacity. Maintain as per your capacity. Feel the stretch right from your toes to your upper tips of your fingers. And slowly and gently come down. Slowly and gently come down. Yes. Next we will be doing is Ardha Kati Chakrasana. Ardha Kati Chakrasana. That will be a lateral band. तो जो आप लेटरल बैंड करेंगे तो आपकी जो रिब्स है वो एक्सपैंड होगी और आपके रिब्स में और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। आपकी स्पाइन लैटरल भी फ्लेक्सिबल होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा इंप्रूव होगा वो एरिया में। ओके, अर्ध कटी चक्रासन के लिए हमें पैरों में हिप लेवल डिस्टेंस लेना है। हिप लेवल डिस्टेंस, यस। अब आपके दोनों हाथ है जो आपको शोल्डर लाइन में लाना है, दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में लाना है। यस। अब आपकी एक राइट, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो ऊपर जाएगा, राइट हैंड नीचे जाएगा इन अ साइमल्टेनियसली वे लाइक दिस। यस, आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा और आपका जो ये हथेली है, आपकी जो हथेली है वो आसमान की तरफ रहेगी। ओके, अब यहाँ पे होगा जो आपका कंप्रेशन। ये क्लोज योर आईज एंड बी देयर। अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो आंखें बंद करके तो आंखें खुली भी रख सकते हो। अब वापस आपको वही सेम कंटिन्यूस वे में आना है और बिना बीच में रुके हुए आपको ऑपोजिट साइड जाना है। ये हाथ को, दूसरे हाथ को एकदम ढीला छोड़ना है, एकदम रिलैक्स छोड़ना है। ये आपकी ईयर लाइन पे होगा, हाथ आपका आसमान की तरफ ऐसे नहीं, ऐसे होगा। परफेक्ट। ना स्लोली एंड जेंटली कम बैक। हाथ पैरेलल रहेगा जमीन से वापस एंड नीचे। वेरी नाइस। Just relax for 2 breaths. Prepare your mind for the round 2. Just feel the changes. आपके बॉडी में जो भी चेंजेस फील हो रहे हैं आफ्टर एवरी पोस्चर, उसका अनुभव कीजिए, उसे महसूस कीजिए। ओके, वापस पैरों में आपके हिप लेवल जितना डिस्टेंस, हाथों को पैरेलल करना है शोल्डर लाइन में। ब्यूटीफुल। ओके, अब आपको राइट साइड जाना है तो आपका राइट हैंड नीचे जाएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा और आपका जो फोर आर्म है आपकी ईयर को टच हो रहा है, आपका पाम फेसिंग टू द स्काई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दूसरे हाथ को कंप्लीटली ढीला छोड़ना है। Just close your eyes and be there. Slowly and gently come back. Now go to opposite side without stopping. दूसरे हाथ को रिलैक्स, हाथ को ऊपर में।
This is very nice stretch for your lungs, your ribs. Yes. Completely relax. अब दोनों हाथों को ढीला छोड़ दे and relax yourself. अब हम नेक्स्ट करेंगे हस्तपादासन. हस्तपादासन के लिए आप पहले सिर्फ एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, उसके बाद आप करना. ओके, द सेम देयर विल बी हिप लेवल डिस्टेंस. थोड़ा सा और पास में लेना इस बार पैरों को अंदर की तरफ. जब आपके पैर अंदर की तरफ है, आपको दोनों हाथ यहाँ से उठा के पीछे की तरफ ले जाना है. नाउ व्हेन यू बेंड फॉरवर्ड, जब आप आगे की तरफ झुक रहे तो यू शुड कीप योर स्पाइन इरेक्ट. आपको ऐसे कर्व नहीं करना है. योर स्पाइन शुड बी इरेक्ट कंप्लीटली. तो वो स्ट्रेच मेंटेन करते हुए आपको नीचे की तरफ आना है. यस, कंप्लीटली डाउन लाइक दिस. अब हाथों को एकदम ढीला छोड़ना और फेस को अंदर की तरफ एंड जस्ट रिलैक्स. अगर आप टच कर सकते हो तो ट्राई टू टच ऑन द फ्लोर. इफ नॉट, इट्स ओके, बट डू नॉट फोल्ड फ्रॉम योर नीज. डू नॉट फोल्ड फ्रॉम योर नीज और अपने आप को फोर्स मत करना. और वापस ऊपर आते वक्त आपको जस्ट अपर बॉडी ऊपर करना है लाइक दिस. ओके, आर यू ऑल रेडी? सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सामने की तरफ. ओके, अब हाथों को धीरे धीरे आपको ऊपर ले जाना है. यस, लाइक दिस. और हल्का सा पीछे जाना. ओके, अब वही स्ट्रेच मेंटेन करते हुए डू नॉट फोल्ड योर नीज एंड डू नॉट हंच बैक. एंड वो स्ट्रेच मेंटेन करते हुए आपको आगे की तरफ आना. वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. Now slowly and gently just close your eyes and feel the stretch. आपकी hamstrings जो muscles है यहाँ पे, उन पे काफी अच्छा तनाव आ रहा है आपके पैर के पीछे की साइड में. Now slowly and gently come back. हाथों को hang करते हुए आपको ऊपर आना है. Beautiful. We'll go one more round for this. Okay. Relax yourself. Okay. अब दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे. अब ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ. Yes. Stretch a little bit more this time. And come forward. Make your spine parallel to the ground. And धीरे धीरे नीचे. And धीरे धीरे नीचे. आपको आपकी क्षमता के अनुसार ही करना है. Do not exceed your capacity. Close your eyes. Just be there for 2 to 3 breaths. Now slowly and gently come up. अब हम करेंगे नेक्स्ट इज परिवर्तित त्रिकोणासन. परिवर्तित त्रिकोणासन में आपको थोड़ा सा गैप बढ़ाना है. ओके, लाइक दिस मच डिस्टेंस. आपको पहले एक बार देखना है, उसके बाद ही करना है. दिस मच गैप. आपके हाथ जो होंगे वो जमीन से पैरेलल होंगे, शोल्डर लाइन में. आपके पाम फेसिंग जमीन की तरफ. ओके, अब आपको आपका जो राइट हैंड है वो ऑपोजिट लेग को टच करना है, ऑपोजिट फुट को. तो यू शुड जस्ट go like this and just bend like this. और गर्दन आपकी जाए, आपका जो गेज है आपके ऊपर वाले हाथ पे रहेगा, ऊपर वाले हाथ पे. ओके, like this. when you turn, आपकी स्पाइन अंदर की साइड में, आपकी चेस्ट बाहर की तरफ ओपन and just relax. Okay, so everybody take a distance in your leg. 3 से 4 फुट का, 3 से 4 फुट का डिस्टेंस लेना है. हाथों को पैरेलल रखना है ग्राउंड से. हाथों को पैरेलल रखना है. अब आपका राइट हैंड जाएगा लेफ्ट फुट के वहां पे. राइट हैंड आपको ट्विस्ट करके आपको बेंड करना है. यस, परफेक्ट, ब्यूटीफुल. आपकी जो गर्दन है वो ऊपर वाले, आपकी जो गेज है ऊपर वाले हाथ की तरफ रहेगी. वेरी नाइस.
Beautiful. Now slowly and gently release it. Come back. जब आप कम बैक हो गए हो तो अब वापस आपका लेफ्ट हैंड जाएगा राइट साइड. ये यूजिंग बोथ द साइड्स ऑफ द बॉडी एंड कंप्लीटली रिलैक्स योरसेल्फ. कंप्लीटली रिलैक्स योरसेल्फ. घुटने से नहीं मोड़ना है, हाथ सीधा रखना है. अब धीरे धीरे आपको सीधा होना है. जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ. आप मैट पे बैठ जाइए. नेक्स्ट विल बी डूइंग सिटिंग पोस्चर्स. Just sit on your mat comfortably. नेक्स्ट हम करेंगे उष्ट्रासन, दैट इज कैमल पोज, जिसमें हमारा बैक, हमारी बॉडी एक कैमल जैसा शेप लेगी. उसके लिए हमें ये फोल्डेड नीज पे बैठना है. पहले कैन यू सिट लाइक दिस ऑन योर फोल्डेड नीज. आपको आपका जो राइट हैंड है उससे आपको राइट फुट पकड़ना है. यू हैव टू गो लाइक दिस एंड यू हैव टू कैच होल्ड योर एंकल. एंड उसके बाद में दूसरा जो हाथ है उसको ऊपर की तरफ किया, फिर उसको टर्न करके जस्ट टेक इट डाउन और गर्दन नीचे की तरफ. योर चेस्ट शुड कम आउट, ओके, एंड योर लोअर बैक शुड कंप्रेस. बाहर आने के लिए रिवर्स ऑर्डर, जो हाथ लेट गया था वो पहले आएगा, एंड देन दिस एंड देन रिलैक्स. ओके, so come down into your kneeling position. Come down into the kneeling position. Yes. Now take your right hand behind, touching your foot, holding your ankle. अब आपके लेफ्ट हैंड को आपको एंकल को पकड़ना है. Very nice. Let your chest be expanded. Hold it as far as your capacity and slowly and gently come out, releasing your one by one hand. Okay, relax yourself in Shashankasana. That is, just sit on your folded knees. आप वज्रासन में बैठ जाए. Folded knees, yes. अब आपके दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करके आपको लेटना है. आपका फोरहेड जमीन पे रहेगा. This is the best relaxing posture. Just relax yourself for 2 more breaths. Completely relax yourself. Very nice. Now slowly and gently come back. Go on your knees again. Go on your knees again. We'll do the Ushtrasan round 2. अब अपने हाथ को वापस राइट हैंड को पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपने एंकल को पकड़ेंगे. Yes, this is your ankle. Yes, you have to hold it. फिर दूसरे हाथ को, yeah, perfect. Slowly and gently come back and sit on your knee. Sit in Vajrasan. Sit on your heels. Yes, rest it. Now lean forward again in Sarshankasana. Yes, lean forward. Resting your forehead on the ground. आपका forehead जमीन पे rest कर रहा है. Body completely relaxed. अगर किसी को पॉट बेली की प्रॉब्लम है और वो आगे नहीं आ पा रहे तो आप you can just take a pillow and you can place it between and you can rest it. Not an issue. Okay. And you can stretch your legs also. यहाँ से आप अंतर भी बना सकते हैं थोड़ा सा और आपकी comfort zone के हिसाब से you can just relax. Very nice. Now slowly and gently अपने आपके दोनों पैरों से आपको आगे की तरफ आना है. हाथों, yes, दोनों हाथों को आपके पैरों की लाइन में रखना है.
अब पैरों को पीछे से क्रॉस करना है, लाइक दिस. यू हैव टू क्रॉस योर लेग्स फ्रॉम बिहाइंड. जस्ट क्रॉस योर लेग्स. Yes, and now sit. Just cross your legs and sit. Very nice. And stretch your legs in front of you. And relax. Heels inside, toes outside, and neck resting on one side. Just close your eyes. Take a moment and prepare your mind for Paschimottanasana. Just close your eyes. Beautiful. Just see and just feel the changes happening in your body. आपके शरीर में काफी सारे बदलाव हुए हैं. Observe the circulation. जो स्ट्रेच, जो तनाव, जो स्ट्रेच महसूस किया है उसे आपको फील करना है. Slowly and gently open your eyes. Very good. अब दोनों पैरों को एक दूसरे से मिलाएंगे. दोनों एरिया एक दूसरे से मिली हुई और दोनों अंगूठे एक दूसरे से टच है. अब आपके जो हाथ है वो आपकी ग्रोइंस के वहां प्लेस करने हैं. ओके, ग्रोइंस के. अब आपको दोनों हाथों को सीधा करना है. पहले यू हैव टू स्ट्रेटन योर लेग, हैंड्स ऑन योर लेग्स. ये आपको जितना, अब आपकी स्पाइन इरेक्ट रखते हुए आपको आगे की तरफ जाना है. अब आपकी स्पाइन इरेक्ट रखते हुए आपको आगे की तरफ जाना है. एंड देन ट्राई टू जस्ट बेंड मोर. बट आपकी घुटने ऊपर नहीं आएंगे. आपके जो घुटने हैं वो जमीन पे ही रहेंगे. एंड जस्ट गो डाउन. ट्राई टू कैच होल्ड योर thumbs. If not possible, it's okay. जहाँ पे भी आपके हाथ पहुंच रहे वहां हाथ तक रखिए. Just relax. Okay. Close your eyes. जिन किसी को भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, डाइजेशन के इश्यूज है, उनके लिए काफी अच्छा है. This is very good for them. Okay. Now slowly and gently come back. Come back. Yes. अब पैरों में अंतर बनाएंगे. Just relax again and prepare your mind for the round 2. And prepare your mind for the round 2. Open your eyes. Get your heel, toes, knees together. Hands by the side of your body. Back erect. अब दोनों हाथों को ग्रोइंस पे प्लेस करना है. जो आपके थाइज है उन पे प्लेस करना है. अब आपके दोनों हाथों को पहले स्लाइड करना है बाहर की तरफ completely. Keeping your spine erect, chin parallel. अब नीचे की तरफ झुकना है. If you can hook your fingers into your toes, it's good. And if not, you can keep besides. It's completely okay. Do not overstress yourself. Very nice. Now slowly and gently come back. And relax yourself. अब हम lying down postures करेंगे. तो उसके पहले आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है. After me, then you have to repeat in the next posture. Okay? और जिनको who are already practicing and if they are comfortable to do with me, then it's okay. You can practice it. Okay. Taking support of any one side, you have to lie down on your back. Taking support of any one side, you have to lie down on your back. Yes. अब आपके दोनों पैरों में अंतर रहेगा. अब हम करेंगे उत्तान वक्रासन. उत्तान वक्रासन के लिए हमें दोनों पैरों में अंतर जो है वो नहीं रखना है. दोनों पैरों को पास में लाना है एक दूसरे के. हाथ शरीर की लाइन में होगा, आपके शोल्डर लाइन में होगा, लाइक दिस.
अब आपके जो राइट लेग है आपको उससे उठाना है completely 90 डिग्री, और आपका जो हेड है वो जाएगा राइट साइड और पैर जाएगा लेफ्ट साइड. दिस इज कंप्लीट स्पाइनल ट्विस्ट like this, and then you have to slowly and gently come back. आपके दोनों सिर और पैर साइमल्टेनियसली एक ही गति में जाएंगे और एक ही गति में वापस आएंगे. ओके, सो लेट अस डू टुगेदर. दोनों पैरों में अंतर नहीं रहेगा, दोनों पैर एक दूसरे से मिले हुए, हाथ इन द लाइन ऑफ योर शोल्डर्स. अब आपके राइट लेग को कंप्लीटली 90 डिग्री उठाना है. आपका राइट लेग जाएगा लेफ्ट साइड और फिर जाएगा राइट साइड. वेरी नाइस. आपको जो तनाव महसूस हो रहा है आपके पीठ पे, अब काफी लोगों का पैर जमीन पे टच नहीं होगा तो इट्स ओके, यू कैन keep wherever it is possible. If not in the line, if not ahead, then it's okay. You can keep nearby your leg. It's completely fine. Now slowly and gently come back and get your heel down and relax yourself. अब दूसरे पैर को उठाएंगे. Take your left leg towards your right side और आपकी गर्दन जाएगी left side. Yes. Slowly and gently come back and release. Just close your eyes and be there for a moment. Just close your eyes. Just close your eyes and be there. Okay. Next we will be doing is Pavan Muktasan. For Pavan Muktasan, it's again on the lying back posture. आपके दोनों जो पैर हैं उनको साथ में जमीन से आपको 30 डिग्री 40 डिग्री तक उठाना है. फिर उन्हें फोल्ड करना है घुटनों से. आप सीधा ही उठाएंगे, फिर इन्हें घुटनों से फोल्ड करना है और जितना हो सके उतना पहले आपको स्टमक की तरफ लाना है. और फिर आपके दोनों हाथों को है जो एनसर्कल करना है इस तरह. एंड देन यू हैव टू गेट इट क्लोजर. और फिर आपको आपकी चिन उठा के ट्राई करना है टच करने के लिए. अगर टच नहीं हो रहा है यू कैन रेस्ट योर हेड डाउन, इट्स ओके. और यहाँ तक मेंटेन कर सकते हो तो आप यहाँ तक भी मेंटेन कर सकते हो, इट्स ओके. बट यू हैव टू डू इट एज पर एज योर कैपेसिटी. ओके, सो लेट अस डू इट टुगेदर. वापस रिवर्स में आपको हाथ खोलना है, पैरों को सामने की तरफ खोलना है एंड उन्हें धीरे धीरे बिना कोई जर्की मूवमेंट नीचे रखना है. ओके, सो लेट अस डू इट टुगेदर. दोनों पैरों को सामने की तरफ मिलाना है, एक साथ में उठाना है. Just raise your legs together like this. Yes, and fold it from your knees. Get it towards your chest. अब अपने दोनों हाथों को एनसर्कल कर लीजिए, फिंगर्स को, और जितना हो सके उतना नीज को पास में की तरफ लाइए. ब्यूटीफुल. अब आपकी चिन को उठाएंगे, आपकी गर्दन को उठाएंगे और चिन को ट्राई करेंगे टू टच योर नीज. वेरी नाइस. Close your eyes. Be there. Close your eyes. Slowly and gently first open your eyes. हाथों को रिलीज कर दीजिए, गर्दन को नीचे प्लेस कर दीजिए. अब दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा कर दीजिए और धीरे धीरे पैरों को नीचे कर दीजिए. वेरी नाइस. दोनों पैरों में अंतर बना देंगे. आंखें बंद and relax yourself.
Just relax yourself. Again, we'll go for the round 2. राउंड 2 के लिए दोनों पैरों को एक दूसरे के पास लाना है, हाथ शरीर के पास में, दोनों पैरों को जमीन से उठाएंगे 30 डिग्री तक एंड फोल्ड इट फ्रॉम योर नीज, जितना आ सके उतना चेस्ट के पास में। अब दोनों हाथों को एनसर्कल करेंगे फिंगर्स को और अपने पास में ले आएंगे चेस्ट के। अब अपनी गर्दन को उठाएंगे और अपनी चिन को ट्राई करेंगे टच करना। स्लोली एंड जेंटली हेड को नीचे रखना है। यस। अब हाथों को रिलीज करेंगे, पैरों को सामने की तरफ ओपन एंड धीरे धीरे नीचे एंड धीरे धीरे एंड रिलैक्स योरसेल्फ। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, विल बी डूइंग लाइंग डाउन ओनली पोस्चर, लेकिन इस बार हम पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेट के हम सबसे पहले इस तरह से पेट के बल लेटेंगे। आप सभी देख सकते हैं और अगर जिनको आता है वो कर भी सकते हैं साथ में। So you just have to do as per as your technique, okay? All right. सबसे पहले आपको पेट के बल लेटना है। हम नौकासन करेंगे। नौकासन के लिए you have to first just lie down in the relaxing posture, that is heels inside and toes outside, और हाथ आसमान की तरफ। अब नौकासन के लिए हम सबसे पहले दोनों पैर जो है हमारे, उन्हें एक दूसरे से मिलाएंगे, और दोनों हाथ शरीर के पास में रहेंगे और गर्दन, आपका जो फोरहेड है वो जमीन पे टच रहेगा। क्योंकि नौकासन में हमारा फाइनल पोस्चर बोर्ड जैसा दिखता है, हम हमारे दोनों हाथ आगे की तरफ ओपन करेंगे लाइक दिस, ओके, ऊपर की तरफ। अब दोनों एक्सट्रीमिटीज, योर लोअर लेग्स एंड योर अपर हैंड्स, दोनों एक्सट्रीमिटी एक साथ उठाना है लाइक दिस। आपका पूरा प्रेशर जो है आपके स्टमक पे आएगा, आपको घुटनों से नहीं मोड़ना है, इसमें भी यू हैव टू जस्ट बी स्ट्रेट, ओके। सो लेट अस डू टुगेदर। ऑलराइट, ओके। एड़ी अंदर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ, हथेलियां आसमान की तरफ। अब दोनों पैर एक दूसरे से मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के पास में, फोरहेड जमीन पे रहेगा इस तरह। वेरी नाइस। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ, ऊपर की तरफ ले आना है लाइक दिस। आपकी चिन जमीन पे रहेगी अभी। अब दोनों हाथों को और पैरों को एक साथ उठाना है विदाउट एनी जर्की मूवमेंट्स। And slowly and gently get down. And relax yourself. Come for the round 2. आंखें खोलेंगे, दोनों पैर एक दूसरे से मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के पास में। आपका जो फोरहेड है वो जमीन पे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ ओपन रहेंगे और आपकी चिन जमीन पे प्लेस्ड। दोनों एक्सट्रीमिटी को साथ में उठाएंगे। ब्यूटीफुल। And slowly and gently keep it down and relax yourself.
अब हमारा नेक्स्ट आसन है भुजंगासन, दैट इज कोबरा पोज, जिसमें हमारी स्पाइन को बैकवर्ड बेंड मिलेगा। तो कोबरा पोज के लिए हमें सबसे पहले हमारे जो दोनों पैर है एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे, और जो हमारे हाथ है वो अंगूठा अलग और 4 उंगलियां साथ में इस तरह से in the line of your chest. In the line of your chest, you have to keep it. Okay? Yeah. In the line of your chest, you have to keep it. आपका जो forehead है वो नीचे रहेगा। अब आपकी जो nose है और chin है उससे brush करते हुए आपको upper body उठाना है। It's like this. Forehead, nose and chin and brush. अगर जो इससे भी आगे जा सकते हैं like this, they can raise your upper extremity up completely. And if not, it's okay. They can just keep their forearms down and just keep their chin and chest out and upward. Okay. So everybody come into the starting posture. दोनों पैर एक दूसरे से मिले हुए, दोनों हाथ in the line of your chest. आपका forehead जमीन पे रहेगा। अब आपके फोरहेड और नोज और चिन को ब्रश करते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है, yes. और आसमान की तरफ देखना है, पैर एक दूसरे से मिले हुए। जो नहीं कर सकते फाइनल पोस्चर, इट्स ओके, यू कैन रेस्ट ऑन योर forearms and you can do it, and then slowly and gently calm down. This is very good for thyroid people. हमारे जो गले में थायरो ग्लैंड होता है वो स्टिमुलेट होता है, तो इससे थायराइड बैलेंस होता है। दिस इज वेरी गुड फॉर दैट। ओके, क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स। For the round 2, slowly and gently open your eyes. दोनों पैर एक दूसरे से मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के पास में। अब दोनों हाथों को 4 उंगलियां एक साथ, अंगूठा अलग। ओके, इन द लाइन ऑफ योर चेस्ट। आपका फोरहेड जमीन पे। अब फोरहेड, चिन और नोज को ब्रश करते हुए आपको ऊपर की तरफ आना है, और ऊपर की तरफ, यस, गर्दन पीछे की तरफ। वेरी नाइस। जो मेंटेन कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और जिनसे नहीं हो रहा है वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही करेंगे। और आप वापस आने बिना कोई संकोच आप वापस आ सकते हैं। Even before my instructions, you can come back, okay? Yeah, now slowly and gently, just relax yourself. Now, prepare your mind for Dhanurasana, that is bow pose. Prepare your mind for Dhanurasana. जैसे हमारे हाथों की 5 उंगलियां सेम नहीं होती, वैसे हम सब इंडिविजुअल्स की बॉडी भी अलग होती है। We have to respect our body and we have to do it accordingly. Do not compare yourself. इससे ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा अच्छे से हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। With the practice and with the time आपसे भी होगा। Just keep patience and just keep practicing. अब धनुरासन के लिए दोनों पैर एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथ शरीर के पास में, और आपका फोरहेड जमीन पर। आपको ये पहले देखना है, उसके बाद ही करना है। ओके, आपका फोरहेड जमीन पर। अब सबसे पहले आपके जो नीज है वो घुटनों से मोड़ेंगे और आपके बटॉक्स के नियर आएंगे, लाइक दिस। आपका जो फोरहेड है वो जमीन पे है, फोरहेड ऑन योर ग्राउंड। अब आपके दोनों हाथों से आपका अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ जाएगा और 4 उंगलियां बाहर की तरफ। अंगूठा अंदर की तरफ, 4 उंगलियां बाहर की तरफ। आपको आपके एंकल पकड़ना है। अब इसमें आपको दोनों अपर बॉडी और लोअर बॉडी साथ में उठाना है।
So you have to first brush your nose and you have to keep your chin down. अब दोनों extremity आपको साथ में उठाना है like this. And then you have to slowly and gently come back. Place your chin, then your forehead, then release your hands, and then release your legs. चलिए अब हम सब साथ में करेंगे. दोनों पैर एक दूसरे से मिले हुए, हाथ शरीर के पास में, फोरहेड आपका जो मस्तक है वो जमीन पे टच हो रहा है. दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे. अब जब आपके हाथ है, आपका अंगूठा अंदर की तरफ होगा और चारों उंगलियां बाहर की तरफ. अंगूठा अंदर की तरफ, चारों उंगलियां बाहर की तरफ. अब आपके फोरहेड को ब्रश करते हुए आपको चिन जमीन पे प्लेस करनी है और आपको दोनों एक्सट्रीमिटी एक साथ ऊपर उठाना है. यस, जितना हो सके कीप योर नीज क्लोजर एंड गो अप. And slowly and gently come down. Release your legs, upper body, and relax yourself. And just relax yourself. We go for the round two. राउंड टू के लिए सबसे पहले आंखें खोलेंगे. दोनों पैर शरीर के पास में, हाथ शरीर के पास में, दोनों पैर एक दूसरे से मिले हुए. दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ना है. आपका जो फोरहेड है उसे ब्रश करके आप जमीन पर रख दीजिए. दोनों हाथों को नीज, आपके जो एंकल है उन पे लॉक कर दीजिए अच्छे से. नाउ raise your both extremities up. अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो कीजिए, वरना slowly and gently open your eyes. Get your both extremities down. हाथों को रिलैक्स करके पैरों को बाहर की तरफ ओपन कीजिए. गर्दन भी किसी भी एक तरफ, हाथ आसमान की तरफ. And just close your eyes. And just close your eyes. Now slowly and gently sit on your mat. Come up and sit on your mat. Come up and sit on your mat. Yes. अब हम नेक्स्ट करेंगे हमारा प्राणायाम. प्राण और आयम. प्राण is your breathing and आयम is your, आयम means controlling of your breath. अब हम प्राणायाम में हम सबसे पहले करेंगे कपालभाति. कपालभाति that is forehead brightener. आपका जो forehead brightener है कपालभाति. कपालभाति के लिए आप एक बार पहले इंस्ट्रक्शन सुन लेंगे क्या कैसे करना है. आप कोई भी आधार आसन ले सकते हैं, आप पद्मासन भी ले सकते हैं और अर्ध पद्मासन भी ले सकते हैं. पद्मासन के लिए आपको आपका राइट जो हील है उससे फोल्ड करके आपके जितना हो सके उतना चेस्ट के नियर बाय और आपका जो हील है उसको इनर थाई के पास ले आना है और फिर आपके दोनों हाथों से आपके पैर को लिफ्ट करके आपके लेफ्ट ग्रोइन पे रखना है. दिस इज व्हेन यू कीप लाइक दिस इज अर्ध पद्मासन. और दो आपको पद्मासन के लिए आपको दूसरा पैर भी सेम तरह ट्विस्ट करके आपके पैर पे फोल्ड करके रखना है. दिस इज पद्मासन. आपको देखना है सिर्फ, यू जस्ट लिसन द इंस्ट्रक्शंस, देन विल डू इट टुगेदर. ओके.
अब ये जब पद्मासन है, हमने ले लिया है, अब हाथों की हमारी जो ड्रोन मुद्रा है वो लेके हमें फिक्स करना है। हमारी जो एल्बो से हमारे हाथ सीधे रहेंगे, पांचों उंगलियां हमारे नीज पे टक रहेगा कंप्लीटली, एंड स्पाइन विल बी इरेक्ट, और आपकी जो चिन है वो ग्राउंड से पैरेलल रहेगी इस तरह से। ओके, अब कपाल भाती के लिए हमें हमारा जहाँ पे फोर्सफुल एक्सलेशन रहता है और पैसिव इनहेलेशन रहता है, हमारा एक्टिव एक्सलेशन रहता है और हमारा इनहेलेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले इनहेल कंप्लीटली इन करना है और एक्सहेल कंप्लीटली आउट, फिर इनहेल and fix your chest, let your chest, ribs and shoulders lifted up and fix it. और जो आपको अभी श्वास छोड़ना है वो आपको पेट से छोड़ना है, तो आपको पेट को अंदर की तरफ करके आपकी श्वास बाहर आ जाएगी। अब चेहरे पे बिना कोई तनाव, बिना कोई स्ट्रेस, आपको सिर्फ नोज से आपको एक्सपल्शंस देने हैं, लाइक दिस। इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी वेरी स्लो, और आपको इनहेलेशन का टेंशन नहीं लेना है, इनहेलेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। ओके, सो एवरीबडी विथ मी, आप लोग कोई भी आधार आसन ले सकते हैं, आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, नॉर्मल पलाटी मार के भी बैठ सकते हैं, आपका जैसा मन हो आप वैसा बैठ सकते हैं। अब पद्मासन, अर्ध पद्मासन, yes, keep your back erect, chin parallel to the ground, yes। अब सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर लीजिए, फिर श्वास बाहर छोड़िए, एक्सेल आउट कंप्लीटली, फिर आपको इनहेल करना है कंप्लीटली इन, and now this time fix your chest and do not allow your chest to come down, आपकी चेस्ट को नीचे की तरफ नहीं आने देना है, so keep your chest fixed, yes। now I'll give you the counts, आपको उस counts के अनुसार करना है। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं प्रैक्टिसेस वो 20 काउंट्स तक कर सकते हैं, जो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली वो 30, 35, 40 काउंट्स तक एज पर एज योर कैपेसिटी कर सकते हैं। ओके, सो एवरीबडी विथ मी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and relax। सबसे पहले आपको allow your chest, ribs and shoulders to come down, just relax it। आपके दोनों पैरों को बाहर की तरफ ओपन कर सकते हैं, अगर आपने पद्मासन लिया है, अर्ध पद्मासन भी लिया तो जस्ट ओपन योर लेग्स, stretch in front of you, close your eyes and relax yourself। we'll go for one more round। ये प्राणायाम है, काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है समझने के लिए, I'll explain you one more time। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी चेस्ट, रिब्स, हमारे शोल्डर्स दे कम अप, and then when you exhale out you again throw everything, all your oxygen out again, और फिर वापस आप अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन। जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ चुका है, you again filling your lungs, fixing your shoulders up। okay, so when you're fixing up your shoulders, अब आपको सिर्फ पेट अंदर की तरफ खींचना है और आपको नोज से एक्सपल्शंस करना है, यू जस्ट हैव टू एक्सहेल, इनहेलेशन आपका हो रहा है, इट्स पैसिव, आपको सिर्फ एक्टिव एक्सपल्शंस देना है। ओके, सो एवरीबडी विथ मी, आप कोई भी वापस आपके आधार आसन में आ जाइए, पद्मासन, सुखासन, whichever you like to take, yes, beautiful, and fix your chest, fix your chest, your shoulders, your hands on your knees। okay, now completely inhale, take a deep inhalation and completely exhale,
Inhale again. Do not allow your chest and shoulders and ribs to come down. Yes. अब आपको, I'll give you the counts. You have to do accordingly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and relax. Allow your chest, ribs, and shoulders to come down and relax yourself. And relax yourself completely. Very nice. ये प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारी जो नेसल कैविटीज है, जब हम एक्सपल्शंस करते हैं तो जितना भी हमारे डस्ट वगैरह रहता है, इट कम्स आउट. It clears the passage for breathing. अब नेक्स्ट हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम. That is the victory प्राणायाम. उज्जयी प्राणायाम का सबसे बड़ा लाभ यही है कि ये प्राणायाम हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं. हम चलते हुए, हम सोते हुए, बैठते हुए, कोई भी कार्य करते हुए. जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल इतनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इतनी बिजी लाइफस्टाइल है, तो हम ये प्राणायाम हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं. अब ये प्राणायाम कैसे किया जाता है? जो आपका ग्लोटिस है, जो आपके नेक में स्थित है, जो आपके नेक में है, वो ग्लोटिस को आपको कंस्ट्रेन करना है, आपको अंदर की तरफ खींचना है और इस तरफ से साउंड प्रोड्यूस करना है, लाइक दिस. आपको ऐसे ही इनहेलेशन करना है और यहीं से एक्सहेलेशन करना है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग योर ग्लोटिस. ओके, तो आप कोई भी इसमें भी आप वज्रासन ले सकते हो, आप अर्ध पद्मासन, पद्मासन, आपको जैसे कंफर्टेबल हो, you can take it. Okay, and then you have to completely inhale, you have to exhale out, and now while inhaling you have to अब काफी लोगों को खांसी आती है ये करते वक्त, तो दैट इज गुड साइन, मतलब आप एकदम सही से कर रहे हो. और अभी भी अगर किसी से नहीं हो रहा है तो जो आपकी टंग है, जो आपकी जीवा है, आप उसको अपर पैलेट, जो आपके मुंह के अंदर जो अपर पैलेट है, दिस इज योर अपर पैलेट, उसको आप, आपकी जो टंग है वहां पे आप चिपका सकते हो. एंड यू कैन keep your mouth close only and just pick it up and remove the sound from your glottis. आपको खराटे वाली आवाज नहीं करनी है, not a snoring sound, it should be very rhythmic. जब आपको हिचकी आती है या गले में खराश होती है, तब आप कैसे करते हो? तो बस जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करना. Okay, so we'll do it together. Just take any meditative posture. Keep your spine erect. हम ह्यूमंस ने सारी नेचुरल जो चीजें होती है उनको खराब कर दिया, उसी तरह हमारा जो बैकबोन है हमने उससे भी हंच बैक कर दिया. एवरी टाइम वी सिट लाइक दिस. So just make it a habit. Keep your shoulders out, your back erect and your spine parallel. क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारी सारी जो नर्व्स है, हमारी वो सारी फंक्शनिंग हमारी रीढ़ की हड्डी के थ्रू होती है. जैसे कि हम हमारे लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट पर्सन होता है तो हम उसे कहते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी है, बिकॉज योर स्पाइन, योर बैकबोन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू योर बॉडी. ओके, ऑलराइट. स्पाइन को इरेक्ट रखेंगे, योर चिन पैरेलल. Inhale completely in. Exhale out completely. अब जब इनहेल कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट योर ग्लॉटिस.
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों के वक्त कॉन्ट्रैक्ट करें। वेरी नाइस। आप घर पे कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इट इज वेरी इजी। आप मिरर के सामने देख के भी आपको जब आपको साउंड फील होगा दिस इज कॉन्ट्रैक्टिंग, यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो। इनिशियली काफी लोगों को प्रॉब्लम होता है ये करते वक्त, बट इट्स ओके, विद द प्रैक्टिस विद द ड्यूरेशन यू विल डू इट। ओके, तो आज की प्रैक्टिसेस हमने इतनी सारी कर ली है, तो इट्स टाइम फॉर रिलैक्सेशन। तो आर यू ऑल रेडी फॉर शवासन? अब शवासन के लिए हम अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। किसी भी एक तरफ सपोर्ट लेना है। ध्यान रखना है हम कभी भी उठते वक्त और लेटते वक्त, आप नॉर्मली भी जब आप बेड पे सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, तो आपको जर्की मूवमेंट नहीं देना है। आपको वो शॉक से बचना है। आपकी आपके जो बॉडी को शॉक अब्जॉर्बर्स है, कई बार नहीं ले पाते, तो यू विल फेस द प्रॉब्लम। सो जस्ट बी इन अ वेरी स्लो स्टेडी मैनर। ओके, lie down on your back. Lie down on your back. Keep your eyes closed. आंखें बंद रहेगी आपकी completely. Yes, just close your eyes and make a wish. आज मैं अपने मन से एक इच्छा जागृत करता हूँ to completely relax my body from my head to the toes completely. मेरे सिर से लगा के मेरे टोज तक मुझे मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स करनी है। आप अपने विल पावर, अपने सजेशन पावर या अपने कमांड पावर से यू कैन डू इट। So now first let us go to the right side. अपने जो right side है बॉडी का, उसकी तरफ जाना है और हमारे right जो leg है, जो हमारा foot है, उससे हमें अपनी आंखों के सामने महसूस करना है, उसका चित्र अनुभव करना है और उससे completely रिलैक्स करना है। आपकी मन के विचार जो आ रहे हैं उन्हें आने देना है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है। You just have to observe like a third person and get back your mind to your leg and just relax it. कैसे होगा, कब होगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको बस एक इच्छा जागृत करनी है। आपका मन आपकी पूरी मदद करेगा रिलैक्स होने में। वेरी नाइस। आपका पैर कंप्लीटली रिलैक्स हो चुका है। आपका जो राइट फुट है, आपका नी जॉइंट है, आपके इनर थाई मसल्स है, आपके थाई एरिया है, इट इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। right from your right from your thigh to your toes, your right leg is completely relaxed. अब आपका जो लेफ्ट लेग है, उसका चित्र आपको आंखों के सामने अनुभव करना है। You have to observe. Yes, now you have to relax each and every smallest and tiniest muscle. आपकी जो एंकल जॉइंट है, आपका जो नी जॉइंट है, आपकी जो सोल है, आपकी जो हिप्स है, उन्हें completely रिलैक्स करना है। Your willpower, your suggestion power, your command power will help you to do this. अब आपकी लोअर बॉडी जो आपकी वेस्ट से लगा के आपके फिंगर टिप्स तक है, आपके टोज तक है, वो completely रिलैक्स हो चुके हैं। They are just relaxed completely. You deserve this relaxation. You deserve this relaxation. So just relax yourself completely.
Now slowly and gently come upwards. That is where your abdomen cavity, जहाँ पे आपका पेट है, आपकी बड़ी आंत है, आपकी छोटी आंत है, आपकी लिवर, पैंक्रियाज, आप उन सभी को कंप्लीटली रिलैक्स करना है, एकदम ढीला छोड़ना है। वहाँ पे जो रक्त का संचालन हो रहा है उसे अनुभव करना है और उससे आपके दिल से शुक्रिया करना है, क्योंकि आपका पेट, जो आपका पाचन तंत्र है, वो आपके पूरे शरीर में पोषण पहुंचाता है। Now slowly and gently come upwards, जहाँ पे आपके लंग्स, आपके हार्ट है, जो आपके रिब केज के अंदर सुरक्षित है, जो बिना किसी रुकावट, बिना किसी शिकायत नॉन स्टॉप चलते रहते हैं, उन्हें completely रिलैक्स करना है। You just have to relax it completely. अब धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान आपकी राइट हैंड की तरफ जाएगा। आपका पूरा ध्यान आपकी राइट हैंड की तरफ जाएगा, जहाँ पे आपकी फिंगर टिप्स है, फिंगर्स है, आपकी रिस्ट जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, फोरआर्म्स है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर जॉइंट। आपको आपका हैंड राइट फ्रॉम योर शोल्डर जॉइंट टू योर फिंगर टिप्स, उन्हें completely रिलैक्स करना है। You have to relax it completely. Very good. Now let us go to our left side. अब हम अपने लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हमारी उंगलियां हैं, हमारी हथेली है, हमारा रिस्ट जॉइंट है, हमारा एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, your forearms, your triceps. You have to just relax them. दिन में वो हमें कितने कार्य करने के लिए मदद करते हैं, हमें उन्हें completely रिलैक्स करना है। You can do it, you are doing it, and you are doing the best you have it. And you are doing the best you have it. Very nice. Now slowly and gently आपको ऊपर की तरफ आना है, आपके चेहरे की तरफ, जहाँ आपकी 5 इंद्रियां हैं, जो आपको आपके बाहरी दुनिया से कनेक्ट करती है। आपकी आंखें, आपका नोज, आपके लिप्स, आपकी जो टंग है, आपके ईयर्स, आपकी त्वचा, उन्हें completely रिलैक्स करना है। You have to relax it completely. Your facial expressions, your muscles should be completely relaxed. Now observe the relaxation right from your head to your toes. Now observe the relaxation right from your head to your toes. Beautiful. Very nice. आप किसी भी एक तरफ टर्न हो जाइए, अपने हाथों का कुशन्स बनाइए। Just turn yourself on any one side. Make cushion of your hand. Now slowly and gently ऊपर आ जाइए और पलाठी मार के बैठ जाइए। Keep your eyes closed. Keep your eyes closed. Okay, we'll end our session with one Omkar. We'll end our today's session with one Omkar. Inhale completely in. Just be there. Enjoy your relaxation and vibrations.
Goodbye, everybody. Thanks a lot. Have a wonderful day. It was great being with you all. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you.